Good morning, students. Our today's topic is cube and cube roots. New chapter begins, cube and cube roots. And before we go for cube roots, we have to revise the facts about cubes. Okay, and you know that a cube, a box shaped. What is cube? A box shaped solid object that has six identical square faces. Okay, क्या होता है? A 3D shape, a 3D shape having 6 square faces. ठीक है, एक ऐसा शेप जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, दैट इज नोन एज क्यूब. ओके, क्यूब के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसके जो और जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं. देखिए, व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब. अर्लियर इन previous chapter you read about a perfect square. What is a perfect square? Perfect square, all those number which are the square of any number is known as perfect square. Like 4, like 4 4 is a perfect square. 4 is a perfect square because it's a square of 2. Similarly, 16 is also a perfect square. 16 is also a perfect square. Why? It's a square of 4. Okay. Similarly, here we deal with the cube numbers. For example, 125 is a perfect cube since 125 is written as 5 into 5 into 5. It means there are 3 5s. Okay, it means it's a cubic form. 5 into 5 into 5, there are 3 5s. When we multiply 5 in 3 times, then we get a number 125, and 125 is a perfect cube. Okay, here let's have some more examples. Suppose 1 into 1 into 1, that is equal to 1 multiplied by 1 in n times, it gives 1. So we can write this, that is 1 cube. Okay, cube क्यों लिखा हमने? Because 1 appears here in 3 times. Suppose that we write 2 into 2 into 2. It means 2 to the 4 to the 8 is equal to 8. It means this 8 is also a perfect cube, and we can write 8 as 2 cube. Okay, it means when we multiplied a number by 3 times, that gives a perfect cube. Okay, when we multiplied a number into 3 times, that gives a perfect square. Suppose that 4, let's take a number 4 multiplied to 3 times, it means 4 4 ja 16, and 16 4 ja 64. It means 64 is a perfect square, and it can be write in form of 4 cube. So here you have seen, यहाँ आप देख रहे हैं, here you have seen a sequence 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. These numbers are perfect cube. Okay, now I think you all are understand about the perfect cubes. Now next Hartley Ramanujan number. Before I tell about Hartley Ramanujan number,
I tell you a story. Ramanujan is a great Indian mathematician and G.H. Hardy is also a mathematician, British mathematician, I think. Once upon a time, G.H. Hardy went to met रामानुजन से मिलने के लिए गए and he took a taxi whose number is 1729. 1729 1729 उस गाड़ी का नंबर था जिसमें वो उनसे मिलने गए। जैसे ही वो मिले तो रामानुजन ने उनसे कहा, एक्चुअली बात तो ये हुई कि हार्डी ने रामानुजन से कहा, जो G.H. हार्डी थे, कि 1729 इज अ डल नंबर, एक डल नंबर है। तो लेकिन उसी समय रामानुजन ने कहा, नो, इट्स अ इंटरेस्टिंग नंबर, इट्स एन इंटरेस्टिंग नंबर बिकॉज दिस नंबर कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ओके, क्या कहा उन्होंने कि ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। रामानुजन क्या करते थे, रामानुजन प्लेइंग विद द नंबर्स, हमेशा वो क्या करते थे, नंबर से खेला करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन डिफरेंट वेज, इज सेड बाय हार्डी रामानुजन नंबर। और ऐसे नंबर बाद में क्या हुए, हार्डी रामानुजन नंबर से फेमस हुए। ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू क्यूब्स ऑफ in different ways. Here give an example, 1729, the taxi number 1729 is the smallest, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है as 1729 is the smallest such type of number, so it is called smallest Hardy Ramanujan number। यानी 1729 is the smallest Hardy Ramanujan number, okay, and it can be expressed as the sum of two cubes, like 1728 plus 1, that is equal to 1728, it's a perfect cube of 12, it means 12 cube plus 1 cube, okay, one way we can express 1729, and in other way 1729 can be expressed as the 1000 plus 1729, 729, 1000 is the perfect cube of 10 and 729 is a perfect cube of 9. So this is the way, these two ways we can express 1729 in sum of two cubes. Similarly, here we have given some other number like 4104. It can be expressed as the 2 cubes and 6 plus 16 cube, and 9 cube plus 15 cube, and the other number is 13,832. It can be expressed as 18 cube plus 20 cube and 2 cube plus 24 cube. You can solve it and you can see whether it is correct or not. Okay, now here perfect cubes and cube roots, आप देखिए आपको यहाँ पर परफेक्ट क्यूब्स दिख रहे हैं, नंबर्स ये देखिए 1, 8, 27, 64, 21, 25, 200, ये यानी ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, और ये क्या हैं, इनके क्यूब रूट्स हैं। देखिए यानी 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इट मीन्स 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 आ रहा है, इट मीन्स 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम तो 343 आ रहा है, इट मीन्स 343 का क्यूब रूट क्या हुआ, 7 हुआ। ओके, यानी इस प्रकार से आप देखिए 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के ये नंबर हैं, और इनके क्यूब रूट्स कितने हैं, 1 to 1000 है। इट मीन्स द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से लेके 10 तक, इनका क्यूब रूट्स क्या होते हैं, 1000 तक होते हैं, 1 से लेके 1000। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्यूब रूट्स हैं, वही नंबर हैं बट नेगेटिव हैं। इट मीन्स जब हमारे पास हम नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव वे में लेते हैं, ओके, जब हम होल नंबर्स को नेगेटिव वे में लेते हैं,
-1 -2 -3, तो इनके क्यूब रूट्स परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब भी क्या होते हैं, माइनस में ही होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए प्रॉपर्टी 1 क्या है, फॉर नंबर्स विथ देयर यूनिट डिजिट एज 1, यानी जो भी नंबर होते हैं अगर उनकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, देयर क्यूब रूट्स, देयर क्यूब्स विल ऑल्सो हैव यूनिट डिजिट एज 1। देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 11 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 11 इंटू 11 इंटू 11 करें तो क्या हो जाएगा, 1331। इट मीन्स देखिए यूनिट डिजिट 1 आ गई, यहाँ पर भी नंबर में क्या थी, 1 थी। 21 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 21 क्यूब इजिकल टू 9261 ही, देखिए यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है। 31 यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में the cubes of the numbers with 1 4 5 6 9 and 0, यदि किसी भी नंबर्स के एंड में यूनिट डिजिट में ये नंबर्स हों, ये 6 नंबर्स हों, 1 4 5 6 9 and 0 एज यूनिट डिजिट विल हैव द सेम यूनिट डिजिट। ओके, देखिए 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2744। यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ भी नंबर में भी 4 है, यहाँ भी 4 है। 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। यूनिट डिजिट में भी क्यूब 5 है, यहाँ भी 5 है। 16 का क्यूब 6, देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 है, यहाँ भी 6 है। 20 का क्यूब 8000, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, क्यूब में 3 0 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो नेक्स्ट है वो देखिए, प्रॉपर्टी 3, द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ यूनिट डिजिट 2 विल हैव यूनिट डिजिट 8 एंड द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विथ यूनिट डिजिट 8 विल हैव द यूनिट डिजिट 2। देखिए कोई भी अगर नंबर ऐसा होता है जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 2 होती है, तो उसके उसके क्यूब की यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 8 होगी। और उल्टा हो जाएगा, यदि किसी नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो उसके क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, आप 8 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, तो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48, 48 और ये 512। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जा रही है, 8 आ जा रही है। ओके, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ द नंबर्स विद यूनिट डिजिट एज 3 विल हैव द यूनिट डिजिट 7 एंड द नंबर यूनिट डिजिट 7 विल हैव द यूनिट डिजिट 3। यानी जिस नंबर के एंड में यूनिट डिजिट अगर 7 है तो उसका जो क्यूब होगा वो उसके यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। 7 की 3 और 3 जिसका होगा उसकी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। देखिए इसका यूनिट डिजिट 7 हो गई, इसकी यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, तो यहाँ पर क्यूब में क्या हो गई, इसकी यूनिट डिजिट 3 हो गई। ठीक है, और भी एग्जांपल दिए हुए हैं 13 का क्यूब करके। अब देखिए नेक्स्ट है द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑल इवन। द क्यूब्स ऑफ इवन, एक मिनट, द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑल इवन एंड द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। यदि 18 यानी इवन नंबर का अगर क्यूब हम निकालेंगे तो वो इवन आएगा, और ऑड नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा। ओके, देखिए यहाँ पर दिया भी है, नंबर्स दिए हैं 1 to 20 दिए हुए हैं। देखिए 1 to 20 में जो इवन नंबर्स हैं 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, इनके जो क्यूब रूट्स देखिए, नहीं सॉरी, इनके जो क्यूब्स देखिए, परफेक्ट क्यूब्स देखिए, हर किसी के क्यूब्स क्या हैं, इवन हैं। देखिए ये 2, ये हैं इवन, और जो ऑड नंबर्स हैं ये, इनके क्यूब्स को आप देखेंगे तो क्या है, ये सब ऑड हैं, इनके ये नंबर्स क्या हैं, ऑड हैं, है नहीं है।
तो इस प्रकार से हम ये प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस उसमें कैसा है। प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 6 कहती है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सॉरी, प्रॉपर्टी 6 है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू एन क्यूब, यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब होता है, क्यूब्स का जो सम होता है वो इन नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू एन का होल स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4, हमने फर्स्ट 4 नंबर्स का क्यूब का सम कर रखा है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब किया, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इन सबको ऐड कर दिया तो 100 आ गया। वैसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल से प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ठीक है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स मैंने आपको बता दिया। अगर प्लस नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो +5 +5 +5 इंटू +5 इंटू +5 इज इक्वल टू +125। यहीं पर अगर 5 माइनस में हो जाए तो -5 इंटू -5 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा 125 तो होगा, लेकिन किस में होगा? माइनस में होगा। यानी व्हेन क्यूब ऑफ 5 +5 वी गेट +125 एंड व्हेन क्यूब -5 वी गेट -125। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।